Introduction. India is a tropical country. Many parts of the northern regions are subjected to low temperatures and southern regions are subjected to hot climate in India. Okay. Suppose if you go to the Tamil Nadu and Kerala, etc., in summer season, 40 to 50 degree temperatures are reporting. If you go to the northern side, Jammu, Kashmir, Srinagar, etc., in the winter season, especially 4 degrees, 3 degrees, etc., very cool temperatures will be reported. Okay. So, first of all, we will go for the hot weather concreting. Hot weather concreting, what are the various precautions, etc. Okay, let we go for the detailed way. What are the various precautions? One question I will give you the related question to the hot weather concreting and one question related to the cold weather concreting. Okay, these two, hot weather concreting and cold weather concreting, is in your syllabus. Now, it is very difficult to define the hot weather. Hot weather को define करना बहुत मुश्किल है. Okay, but as per the codal practice, as a guideline, air temperature above 35 degree temperature, relative humidity 25% से less than, and wind velocity more than 15 kilometers per hour is the conditions of the weather. As per the class 7.1.1 of the MORTH and IRC 15/2017. Okay. This is the definition of the hot weather. मतलब 35 डिग्री से टेम्परेचर हाई होना चाहिए, साथ साथ में 25% से रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाटर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में कम होना चाहिए, एंड हवा का जो विंड वेलोसिटी है 15 किलोमीटर से ज्यादा तेजी से हवा तेजी से जाना चाहिए. अगर हवा तेजी से जा रहा है मतलब जल्दी पानी एवापोरेट हो जाएगा, सो सरफेस क्रैक्स है डेवलपमेंट हो जाएगा. इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अकर्स इन द फील्ड, the necessary remedial measures should be taken while concreting. So, hot weather concreting ka definition is given in this slide. Okay. It is well known that concrete mixed and placed and compacted cured at relatively higher temperature develop the high early strength than that of procured normal strength. क्योंकि मतलब ये एक फायदा भी है, हाई टेम्परेचर हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग में कॉन्क्रीट है, इट विल अटेन्स इट्स स्ट्रेंथ क्विकली, because you know the maturity concept is equal to time into temperature. But temperature बढ़ गया तो obviously hydration process ये accelerate हो जाएगा, so that quickly concrete है it will attain the strength. But साथ साथ में नुकसान क्या है? What is the drawback in this? It will develop a मतलब shrinkage cracks. That means surface shrinkage cracks. So that cracks will be मतलब lot of ingress of the other foreign elements into the concrete. So you have to stop those micro cracks. However, tests have shown that the insufficient curing, especially the combination with the higher temperatures of placing, reduces the strength of the concrete. High concrete temperatures combined with the high air temperature, okay, high wind velocity and low relative humidity enhance the rate of evaporation at the surface. Concrete के ऊपर है, मान लीजिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट का. Concrete pavement है, समर सीजन में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. I am constructing my pavement in the hot summer season in the 45 degree temperature. At that time, what is going on? High concrete temperature. Obviously, air temperature is, ambient temperature is high. Concrete temperature is also high because जो गिट्टी है, सैंड है, कहाँ डंप करोगे? साइट पे डंप करोगे ना. ऑब्वियसली उसके ऊपर है धूप, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देगा, गिट्टी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सैंड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वाटर जो मिक्सिंग वाटर का बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट प्रोड्यूसिंग कंक्रीट है वो भी गरम कंक्रीट गिरेगा. तो कंक्रीट टेम्परेचर भी बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ गया, विंड वेलोसिटी बहुत तेजी से हवा चल रहा है, एंड वाटर ह्यूमिडिटी है मतलब वो बहुत कम हो गया. ये चारों कंडीशंस रेट ऑफ एवापोरेशन मतलब क्या है? ये स्क्वायर मीटर ऑफ द पेवमेंट एरिया में, दैट मीन्स 1 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर लेंथ. सो 1 into 1 क्या है? 1 स्क्वायर मीटर एरिया. 1 स्क्वायर मीटर एरिया से हाउ मच वाटर इज एवापोरेटेड? फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर वाटर इज एवापोरेटेड. 1 लीटर मतलब है 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg है ना. 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg वेट. So 1 kg per square meter per 1 hour time. That is the unit of the evaporation.
Okay, now it is given. The plastic shrinkage cracks, this means micro cracks, may be one of the main reasons for other types of the damage due to the water penetrating through them. These micro cracks may also extend to the entire pavement in the course of time. ये माइक्रो क्रैक्स है, जो स्मॉल माइक्रो क्रैक्स है, टुमारो बढ़ता जाएगा. ओके, द क्रैक विड्थ बढ़ता जाएगा. अगर कंक्रीट विड्थ है, मतलब ये माइक्रो क्रैक्स विड्थ बढ़ता गया तो क्या है, अंदर है, जो पेमेंट के अंदर है, डबल बार्स, टाई बार्स वगैरह करोड़ हो जाएगा. जनरली द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ द सरफेस मॉइस्चर कंक्रीट शैल नॉट एक्सीड कितने 1 kg पर स्क्वायर मीटर पर आवर. ओके, एज पर मोर्थ में भी दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, है ना, जो मोर्थ 2013 कोड में भी क्लास नंबर 6027.2, ये मोर्थ भी मैंने अपलोड कर दिया आपको. ओके, फिर एज पर द IRC 15 2017 कोड in the class number 7.1.2 it is given. Okay, yesterday I have already shown to you. If the rate of evaporation is more than this value, specified value, ये value याद रखिएगा. The precautionary concrete weather must, that means अगर ये evaporation rate है ना 1 से कम हो गया, precautions जरूरत नहीं भाई, unnecessary ना फालतू खर्चा बढ़ाना मत. दैट मीन्स अगर आपका जो रेट ऑफ एवापोरेशन है ओनली 0.8 kg पर स्क्वायर मीटर पर आवर आ गया, देन देयर इज नो नीड फॉर दी हॉट वेदर कंक्रीटिंग. सो पहले रेट ऑफ एवापोरेशन कैलकुलेट करिए. एक कर्व दिया है ना, एक रेडीमेड ग्राफ पेपर दिया है, सॉरी एक कर्व दिया है ना IRC 61 में, IRC 15 में. ओके, वो कर्व यूज करके पहले रेट ऑफ एवापोरेशन निकाल दीजिए. वो रेट ऑफ एवापोरेशन 1 kg से ज्यादा एवापोरेशन चल रहा है, एट दैट टाइम ओनली आपको मतलब पेमेंट को ढकाना ही है, ट्रोपालिन पर्दा से ये कवरिंग करना ही है ना, शेड्स बनाना ही है, छाया के अंदर गिट्टी रखना ही है, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पानी के जगह पे आइस मिलाना ही है, ठंडा करना ही है. ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स कब लोगे, व्हेन द रेट ऑफ एवापोरेशन इज मोर देन दिस वैल्यू. ओके, नाउ यू सी, नो कंक्रीटिंग शैल बी डन when the temperature of the resultant concrete reaching the paving site more than 30 degree temperature. अगर जो भी pouring concrete temperature है 30 डिग्री से ज्यादा हो गया है, at that time concreting है बंद कर दीजिए, no concreting. Next, अगर 1 square meter that means 1 kg per square meter per 1 hour से rate of evaporation ज्यादा हो गया, then hot weather concreting precautions ले लीजिए. Now this is important. आपको मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता हूँ T3 में, what are the various remedial measures should be taken in case of hot weather concreting. दूसरा क्वेश्चन, what are the remedial measures to be taken in case of cold weather concreting. ये दोनों में ये क्वेश्चन है, I will ask you in the T3 examination. So पहले hot weather concreting का precautions में बताता हूँ. Okay, first materials of concrete, second mixing, placing, compaction, curing of concrete. Okay, ये दोनों के बारे में मैं डिस्कस कर. First the various aspects related to material, various aspects related to the other activities of the concrete. Let we see. First one materials बारे में. हाँ, materials को क्या करोगे, concrete materials क्या क्या है, what are the ingredients. पानी है, बालू है, सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है, सीमेंट है, यही है ना. ओके, एंड एडमिक्सचर्स भी है, सुपर क्लासिफाइजर्स भी है. ये कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज करना, कौन सा टाइप ऑफ द मटेरियल्स है अवॉइड करना, ये मैं बताता हूं. ओके, वाटर क्या करना, इन केस ऑफ द हॉट वेदर, इफ द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल्स इंक्लूडिंग वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड, द रिजल्टेंट फ्रेश कॉन्क्रीट विल बी हाई टेम्परेचर. मान लीजिए अगर आपको पानी को मेंटेन कर, मिक्सिंग वाटर मतलब वो मेंटेन नहीं किया है, जो भी फाइनली अल्टीमेट मिक्सर से जो भी कंक्रीट नीचे गिरेगा, दैट मीन्स वो भी हाई टेम्परेचर में कंक्रीट गिरेगा. 30 डिग्री से कंक्रीट नीचे ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो कंक्रीटिंग नहीं करना ही है. merely increasing of the water content without increasing the cement content will cause the increase of the water cement ratio. मतलब merely मतलब अकेला पानी बढ़ाओगे कंटेंट विदाउट इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट विल कॉज द वाटर सीमेंट रेशियो मोर वाटर सीमेंट रेशियो है तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो गया तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, देयरफॉर आइस कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ मिक्सिंग वाटर. देखो मतलब वो हॉट वेदर कंक्रीटिंग में फर्स्ट स्टेप है
मतलब नॉर्मल पानी का जगह से मतलब वो आइस मिलाना है। आइस को मतलब है मतलब ये काम करो, आइस मतलब नॉर्मली क्यों बड़ा बड़ा बोल्डर्स में आती है, वो बोल्डर्स को एक फ्लेक मिशन आती है, एक मिशन, वो मिशन के अंदर है बोल्डर्स डाल दीजिए, पतली से फाइन फ्लेक्स, स्मॉल फेक फ्लेक्स, मतलब अभी आप गन्ने का रस पीता होगा ना, उसमें देखो वो आदमी क्या करेगा, मतलब एक बड़ा हैमर लेके वो बोल्डर को मतलब छोटा 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 पीसेस में मतलब मारेगा। सो देन उसी को आपके ग्लास में थोड़ा गन्ने का रस और मतलब थोड़ा बर्फ लगा के आपको पिलाएगा ना। सिमिलर वे आपको आइस है फ्लेक्स, छोटा छोटा फ्लेक्स में मिलाना ही है। क्रश्ड आइस, इधर देखो, क्रश्ड आइस और आइस फ्लेक्स आर नॉर्मली एडेड इन दी मिक्सर, पैन मिक्सर है, ड्रम मिक्सर में, मतलब गर्मी मौसम में पानी मत लगाइए। आपको तो टोटल है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए तो 186 लीटर्स पानी मिलाना है ना, 186 लीटर्स का पानी जगह पे 186 लीटर्स का मतलब आइस मिलाइए, आइस, ओके ना, सो दैट है कंक्रीट है मतलब ठंडा कंक्रीट गिरेगा। Okay. Next, the quality of ice should be taken into account in the total mixing water requirement. The ice should be manufactured from the non-chlorinated water. This is important. Okay, जो भी आइस बनाएगा वो आइस है नॉन क्लोरीन वाटर से बनाना ही है। नेक्स्ट मटेरियल क्या है, सीमेंट। सीमेंट को क्या करना, ये देखो, the effect of the higher temperature on the cement is that the rate of hydration of the cement is increased, thus reducing the setting time considerably. Therefore, use of rapid hardening cement and 53 grade of the OPC shall be avoided. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हॉट वेदर कंक्रीटिंग में ये 53 ग्रेड मत यूज करो, डोंट यूज, एंड ओपीसी 53 ग्रेड यूज मत करिए, एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज मत करिए, समझ ना। दिस इज द प्रिकॉशनरी मेजरमेंट, गर्मी मौसम में ये यूज नहीं करना, ये 53 ग्रेड ओपीसी एंड रैपिड हार्डनिंग। बट ये दोनों है ना कोल्ड वेदर के लिए सूटेबल ब्रदर, दीज टू आर सूटेबल फॉर कोल्ड वेदर, समझ में ना, जो हॉट वेदर को सूटेबल नहीं है, कोल्ड वेदर को ऑपोजिट, तो मतलब उस समय यूज करिए ये दोनों। हाँ ओके। नेक्स्ट एग्रीगेट, नेक्स्ट मटेरियल क्या है, गिट्टी। हाँ, गिट्टी को क्या करना है, एग्रीगेट शुड बी केप्ट अंडर द शेड्स, छाया के अंदर रखना है, मतलब आजू बाजू में कुछ बड़ा बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ है ना, मान लीजिए रोड वर्क चल रहा है भाई, मतलब है समर सीजन में मान लीजिए धूप में गिट्टी है, स्टैक्स, जो भी ट्रैक्टर एंड ट्रक से जो भी गिट्टी मंगवाओगे रोड का बगल में स्टैक मत करो, दैट मीन्स रोड का बगल में डिपॉजिट मत करो, नियर बाई एक कुछ बड़ा बड़ा पेड़ है ना, आम का पेड़ वगैरह ना, नीम का पेड़ वगैरह ना, वो पेड़ का नीचे रख दीजिए, सो दैट क्या है, दैट मीन्स एग्रीगेट थोड़ा मतलब गर्म नहीं होगा, ओके। दैट मीन्स एग्रीगेट शुड बी केप्ट अंडर द शेड। अगर नहीं है, एक भी पेड़ नहीं है, तब क्या करना, एक शामियाना मंगवाइए, एक शामियाना मंगवा के शामियाना का नीचे रखना ही है। दैट मीन्स यू हैव टू मेक द अल्टरनेटिव शेड्स, एक छोटा छोटा टेम्पररी शेड्स है, मतलब शादी का टाइम में एक शामियाना मंगवाता है ना कपड़ा वाले, है ना, सेम है, मतलब आप आर्टिफिशियली मतलब एक शेड्स करके मतलब ये एग्रीगेट एंड बालू को उसी का नीचे रख दीजिए। एंड दूसरा मेथड क्या है, अल्टरनेटिवली द कोल्ड वाटर कैन बी स्प्रिंकल्ड ऑन द एग्रीगेट स्टॉक पाइल्स। जो भी एक ट्रैक्टर है, एक ट्रक है, गिट्टी है, मतलब रोड का बगल में डिपॉजिट करोगे, एक एक मतलब 500 मीटर दूर में एक ट्रक, 500 मीटर दूर में एक एक ट्रक है, स्टैग्नेट करोगे ना, फिर उसके ऊपर है ना मतलब पानी, हल्का पानी छिलका देना, सो दैट है गर्म टेम्परेचर है ना, मतलब डाउन हो जाएगा। मुर्गी का पोल्ट्री देखे, दैट मीन्स गर्मी मौसम में मुर्गी मर जाती है, इसलिए ना वो पोल्ट्री फार्म के ऊपर ना मतलब वो लोग है ठंडा कपड़ा पर्दा लगा के हर 2-3 घंटा में एक बार है ना कूलर्स लगाता है, ठंडा पानी छिलकाता है, आपने देखो, समझ में आएगा ना। एनिमल्स देखो, जू में भी गर्मी मौसम में एनिमल्स है ना मर जाता है, इसलिए है ना उसको कूलर्स, आर्टिफिशियल कूलर्स लगाता है, और इसके ऊपर है पानी, है ना, छोटा छोटा चिड़िया के ऊपर, उसके ऊपर है ना पानी छिलकाता रहता है ना, टाइगर्स मतलब जू पार्क में देखते हैं स्पेशली, है ना। सिमिलरली आर इनंडेट वाटर विद दी एग्रीगेट्स, एग्रीगेट को कंप्लीटली मतलब सबमर्ज करना ही है। मान लीजिए जो भी गिट्टी है, मान लीजिए 100 केजी गिट्टी है, मिक्सर में डाल रहा है, वो मिक्सर में डालने के पहले आप एक काम करना, वो जो गरम गरम गिट्टी को पहले पानी मंगवाइए 1-2 बाल्टी, वो पानी में पहले कर दो, फिर पानी से मतलब फिर सेपरेट करने के बाद तब मिक्सर में डाल दो, ओके, सो दैट है जो भी गर्मी है मतलब कम हो जाएगी एग्रीगेट का। अदरवाइज गरम गरम एग्रीगेट मिक्सर में डाल दिया तो रिजल्टेंट कंक्रीट जो भी फाइनली
रिजल्टेंट कंक्रीट है 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। रिजल्टेंट कंक्रीट है मतलब वो थर्मामीटर लगा के जो भी प्रोडक्ट फाइनल कंक्रीट मिक्सर से जो भी कंक्रीट नीचे गिरती है मतलब वो कंक्रीट को टेम्परेचर टेस्ट करिए, वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यार्ड मिक्सर्स। यार्ड मिक्सर्स कैसे होना चाहिए? प्रिकॉशनरी मेजरमेंट। Some of the yard mixtures may be cause the undesirable secondary effects such as the reduction in the ultimate strength. So, here you go. It is recommended that only yard mixtures whose results are already known by the engineer. मान लीजिए आप है ऐसा सुपर प्लास्टाइजर्स ऐसा एड मिक्सर्स यूज करिए जिसका टेस्ट रिजल्ट्स जिसका एक्सपीरियंस है, ओके, आपको पहले से मालूम है, पता है, वही मंगवाइए। नया मटेरियल्स है मतलब जो उसके बारे में आपको कुछ पता होता नहीं है ना, मतलब वो यूज मत करिए। कभी मूवी देखना ही है, आप क्या करोगे? किसी से फीडबैक लोगे ना, भैया कौन सा मूवी है, कैसे मूवी है, मतलब अच्छा लग रहा है क्या, तभी आपको टिकट खरीद करके अंदर जाता है ना। दिस इज द फीडबैक। सिमिलरली मान लीजिए आपको एक बॉडी क्या है फ्रेशनर कुछ लगाना ही है, आप क्या करोगे? जो भी मार्केट में सो मेनी वेराइटीज है, आप एक काम करो, आपका दोस्त से पूछो जो रेगुलरली इस्तेमाल करता है, भैया कौन सा परफ्यूम है बहुत अच्छा लगता है, वो ही विल गिव यू दिस सम फीडबैक, भैया ये है, ये कंपनी प्रोडक्ट है, अच्छा खुशबू देती है, सो दैट यू कैन यूज दो। सो डोंट गो फॉर दी यानी न्यू मटेरियल, बिल्कुल उसके बारे में कुछ पता होता नहीं है वो यूज मत करिए हार्ट वेदर कंक्रीटिंग में। मतलब therefore it is recommended that only such admixture should be used in respect of which adequate prior data is available, prior knowledge is known to you, prior experience is already there, that materials only used. दिस इज द गिवन इन द कोड। मतलब ये मेरा स्लाइड शो नहीं है, ये सारे स्लाइड शो है आई हैव मेड फ्रॉम द IRC 61 एंड IRC 15 एंड IRC 91 एंड मोर्थ कोड, है ना। हाँ नेक्स्ट सेकंड, प्रोडक्शन प्लेसमेंट कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। अभी तक है मटेरियल कवर कर लिया। मटेरियल में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, वन बाय वन। पानी कैसे यूज करना, आइस यूज करना। गिट्टी को कैसे यूज करना, छाया के अंदर रखना ही है। यार्ड मिक्सर्स कैसे यूज करना, यार्ड मिक्सर्स है प्रायर एक्सपीरियंस वाली यूज करना। एंड सीमेंट कौन सा यूज करना, सीमेंट है OPC 53 ग्रेड एंड रैपिड हार्डनिंग छोड़ के बाकी सीमेंट्स यूज कर सकता है। ओके, नाउ प्रोडक्शन प्लेसमेंट बारे में पता। द कंट्रोल ऑफ द कंक्रीट टेम्परेचर इज बेटर डन एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, हेंस एफर्ट शुड बी मेड टू मेक द कंक्रीट एज कूल एज पॉसिबल। द मिक्सर शुड बी व्हाइट कलर, पोताई कर दो। गर्मी मौसम में सफेद कलर कपड़ा क्यों पहनता भाई? काला रंग पहना तो मतलब आपको पूरा पूरा पसीना हो जाएगा ना, इसलिए मतलब जो ड्रम मिक्सर है पैन मिक्सर को व्हाइट कलर पोताई लगा दो, दैट मीन्स व्हाइट कलर पेंट करो, सो दैट व्हाइट कलर क्या करेगा, सन को मतलब वो धूप को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा। जैसा पर्सन है मतलब कंक्रीट को भी ऐसा ही ठंड लगता है, कंक्रीट को भी गर्म लगता है गर्मी लगती है, तो हमें ना सो दैट है ये कंक्रीट मिक्सर को व्हाइट कलर पेंटिंग करना ही है। The mixer drum and blade should be checked frequently, and the hardened material gets stuck to the inside faces are likely to reduce the efficiency of the mixer. That means जो भी मिक्सर के अंदर है जो ब्लेड्स है उसको फ्रीक्वेंटली साफ करना ही है, ये कोड में लिखा भाई। नेक्स्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ द नीडल वाइब्रेटर, स्टैंड बाय यूनिट्स, है ना, मतलब मैन पावर, है ना, मशीनरी रेडीली अवेलेबल। दैट मीन्स कंक्रीटिंग है मतलब देर मत करना, गर्मी मौसम में फटाक फटाक से कंक्रीट कंप्लीट करके। दैट मीन्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी फ्रीक्वेंटली चेक्ड एंड मेंटेन्ड इन ए वेरी गुड ऑर्डर एंड नेसेसरी स्पेयर पार्ट्स शुड बी केप्ट रेडी एंड ample supply of water for mixing and damping of the subbase, curing etc should be readily available. ये प्रिकॉशंस है मतलब लेना पड़ेगा साइट पे। समटाइम्स ये देखो रेट ऑफ एवापोरेशन कितने हो गए भाई, मैक्सिमम अलाउबल रेट ऑफ एवापोरेशन कितने हैं, 1 kg पर स्क्वायर मीटर पर आवर। बट समटाइम्स असल बहुत और डबल 2 गुना हो गया टेम्परेचर। आउटसाइड टेम्परेचर है, गर्मी मौसम है, मई मंथ में देखो, मई 20 तारीख 25 तारीख आसपास में वो इतना टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर, है ना, 49 डिग्री 51 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। एट दैट टाइम देखो रेट ऑफ एवापोरेशन है 2.5 kg पर स्क्वायर मीटर पर आवर। अगर इतना तक एवापोरेशन चले गया एट दैट टाइम ये कुछ नहीं चलेगा। एट दैट टाइम
Alternatively, concreting be done at evening hours or in case of night hours. देखो, अगर टेम्परेचर है और टू मच बढ़ गया है, एक शेड्स बनाना पड़ेगा. जो भी पेवमेंट कंस्ट्रक्ट किया है ना, उसके ऊपर ना टेम्पररी शेड्स, मतलब वो आर्टिफिशियल स्टैंड लेके आ जाइए. वो स्टैंड के ऊपर टुपालिन पर्दा वगैरह, मतलब शामियाना वगैरह, मतलब बिछा के, मतलब वो प्रोटेक्ट करना ही है. समझ है ना. अदरवाइज concreting should be done at morning hours and night time concreting. कब? when the rate of evaporation is increased to 2.5 kg per square meter area per 1 hour time. अगर पानी है ज्यादा evaporate हो रहा है, ये कब ज्यादा evaporate होगा? टेम्परेचर और बढ़ जाएगा. तो नेक्स्ट इधर देखो, द concreting in place should be covered with a tropalin mounted cover stands or similar arrangement during the hot hours. 11 बजे से लेके 4 PM के बीच में concreting मत करिए. Don't go. For an average daily output of 30 meters length in a semi-mechanized construction, minimum of the such covering stand should be required. इधर मैं एक cover stand दिखाता हूँ. ये typical sketch of the cover stand is shown in the figure below. इधर देखो, इधर pavement है, मतलब concrete pavement है. इधर इसका नीचे से जाएगा. इधर ये 7 meters concrete है. इधर देखो, एक tropalin पर्दा है. इधर इसके ऊपर है पर्दा बांधना ही है. So that है, मतलब at least 10 पर्दा ready रखो. 10 पर्दा रेडी रखो. दैट मीन्स एक एक पर्दा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 मीटर, उसका मतलब 30 to 50 मीटर तक है. मतलब कम से कम आज पेमेंट है मात्र 50 मीटर से कंक्रीट पेमेंट करोगे. ये 50 मीटर का लेंथ ऑफ द कंक्रीट पेमेंट है. एंटायर ये छाया के अंदर ढकाना ही है. ये टिपिकल कवर स्टैंड फॉर शेल्टरिंग ऑफ द फ्रेशली लेड कंक्रीट पेमेंट इन द गर्मी सीजन. दैट मीन्स हॉट वेदर सीजन. Okay, estimation of the temperature of the freshly mixed concrete from the temperature and the proportions of the mixed ingredients. मान लीजिए कंक्रीट का टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करोगे? कंक्रीट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं भाई? सीमेंट रहते हैं, वाटर रहते हैं, कोर्स एग्रीगेट रहते हैं, फाइन एग्रीगेट रहते हैं, एंड एडमिक्सर्स रहते हैं. दैट मीन्स एडमिक्सर मतलब केमिकल एडमिक्सर, मिनरल है. ये सारे मटेरियल टेम्परेचर है, आप थर्मामीटर से नाप लीजिए. सीमेंट बोरी में थर्मामीटर लगाओ भाई, सीमेंट का टेम्परेचर आ गया ना. गिट्टी में भी थर्मामीटर लगा दो, गिट्टी का टेम्परेचर आ गया. नेक्स्ट ये जो वाटर है, मिक्सिंग वाटर है, उसमें भी थर्मामीटर लगा दो. दैट मीन्स पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ईच मटेरियल आप नाप लो. इसके बाद कैलकुलेट कैसे करना मैं बताता हूँ. The temperature of the freshly concrete mixer, concrete जो भी concrete है मिक्सर से नीचे ड्रॉप करेगा. that can be estimated by using this formula. देखो, WA/TA/SA plus WC/TC/SC plus WW/TW/SS by WA/SA plus WC/SC/WW and SW. What is T? टेम्परेचर ऑफ द फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट. जो भी मतलब आप है कंक्रीट मिक्सर रहेगा ना, ड्रम मिक्सर, वो ड्रम मिक्सर से फाइनली 5 मिनट मिक्सिंग टाइम के बाद जो नीचे गिरा दोगे, वट एवर द कंक्रीट यू आर मतलब ड्रॉपिंग फ्रॉम द कंक्रीट मिक्सर, दैट इज द फ्रेश मिक्सड कंक्रीट, फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट. दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू T इन डिग्री टेम्परेचर. ओके ना. नेक्स्ट, व्हाट इज TA, TC, TW? T इज इक्वल, TA मतलब है टेम्परेचर ऑफ द एग्रीगेट. देखो, एग्रीगेट गिट्टी का टेम्परेचर, TA इज इक्वल टू गिट्टी का टेम्परेचर. TC मतलब क्या है? सीमेंट का टेम्परेचर. TW मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ द वाटर. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज WA? वेट ऑफ द एग्रीगेट. मतलब जो भी गिट्टी 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए कुछ गिट्टी यूज करोगे ना, 12-10 kg, वो दैट इज द वेट ऑफ द एग्रीगेट. WC मतलब है वेट ऑफ द सीमेंट. 1 क्यूबिक मीटर के लिए तो 330 kg यूज कर रहा है. So WC मतलब है वेट ऑफ द सीमेंट. WW मतलब वेट ऑफ द वाटर. वेट ऑफ द वाटर कितने लीटर यूज करोगे? 186 लीटर्स ना 1 क्यूबिक मीटर के लिए. सो इधर है 186 लीटर्स. वेट ऑफ द सीमेंट मान लीजिए 330 kg. ओके. वेट ऑफ द एग्रीगेट मान लीजिए 12-10 kg. सो दिस WA इज इक्वल टू वेट ऑफ द एग्रीगेट. WC इज इक्वल टू वेट ऑफ द सीमेंट. WW इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर. व्हाट इज TA? टेम्परेचर ऑफ द गिट्टी, temperature of the cement and temperature of the water. What is SA, SC and SS? These are the specific heats, calories per gram per degree centigrade. The specific heats of the
materials are given here. देखो specific heat of the aggregate and specific heat of the cement है, as per the code, as per the IRC code, this is the standard value 0.22. You have to assume this value only. SA specific heat of the aggregate, SC specific heat of the cement, ये दोनों का वैल्यू है 0.22 एंड वाटर का स्पेसिफिक हीट कितने ब्रदर 1.0. सो देखो ये SA का जगह पे कितने सब्स्टिट्यूट करोगे 0.22, SC का जगह पे 0.22. These are the standard value. And SS specific heat of the water, specific heat of the water है, एक्चुअली ये SS नहीं है, ये SW होना चाहिए, ये प्रिंट मिस्टेक है, ये SW ब्रदर, देखो दिस इज SW. ओके देखो ये तीनों वाटर का ब्रदर, W मतलब है वाटर, देखो ये तीनों है सीमेंट का है यार, देखो ये तीनों एग्रीगेट का, समझ में आ गया ना. SA कितने हैं, देखो देखो 0.22, SC कितने हैं 0.22. नेक्स्ट SW मतलब है स्पेसिफिक हीट ऑफ द 1.0. ओके ये SS नहीं है, ये SW. ओके प्रिंट मिस्टेक, ओके सो टाइप मिस्टेक है ना. फिर ये 1.0 सब्स्टिट्यूट करिए. ओके नाउ मैंने सब्स्टिट्यूट किया, देखो if I am substituting these values, formula is become very simple. Weight W में ये मतलब क्या है, weight of the aggregate. SA मतलब क्या है, specific heat of aggregate. WC मतलब weight of the cement. SC मतलब specific heat of cement. WW मतलब weight of the water. SW मतलब specific heat of the water. ये कितने हैं 1.0. SC कितने हैं 0.22. SA कितने हैं 0.22. ओके ना. ये सब्स्टिट्यूट करो, आपको तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन में मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा भाई, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा. गिट्टी 1210 kg, गिट्टी का टेम्परेचर है मान लीजिए 32 डिग्री, स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्रीगेट है 0.22 स्टैंडर्ड वैल्यू, वेट ऑफ द सीमेंट कितने 330 kg, टेम्परेचर ऑफ द सीमेंट है बोरी में थर्मामीटर लगा के नाप लो, दैट इज फॉर एग्जांपल 24 डिग्री. नेक्स्ट SC इज इक्वल 0.22, वेट ऑफ द वाटर है 186 kg, लीटर बोलो kg बोलो सेम ना. नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इक्वल टू मान लीजिए 28 डिग्री. नेक्स्ट SW इज इक्वल टू 1.0 मतलब ऐसा ये इंट्रोड्यूस मतलब लेना नहीं लेना सेम का सेम है, इंटू 1 है, ले लो नहीं ले लो बात बराबर है. नीचे डिनोमिनेटर में वेट ऑफ एग्रीगेट 1210 kg, ये 0.22 प्लस 186 liters, that means 186 kg into 0.22 plus weight of the water, sorry this is 330 kg cement का weight, या specific heat of the cement है 0.22. next weight of water कितने हैं 186 into ये 1.0. now ये calculate करो, temperature of the freshly dropping concrete from the concrete mixer will be find out, because this is the formula. okay next if in case of the aggregate contains some free water, this the free water, then the formula becomes this. That means the aggregate में already कुछ water है, already free water present है. At that time the above formula will be turned to here. Next case 2, in case of the ice is added, अगर ice add किया है, only ice का जो भी ये 79 point specific heat, the specific heat of the ice 79.6 into WI. That means weight of the ice. WI is equal to weight of the ice. जो formula will become, ये केस 2 क्या है, अगर आइस यूज किया तो. ये केस 1 क्या है, ये केस 1 क्या है विदाउट आइस, विदाउट आइस. नॉर्मल वाटर है तो ये फार्मूला यूज करो, आइस के साथ है तो ये फार्मूला यूज करो. व्हाट इज व्हाट आई एम रिटन हियर. ओके मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई. हाँ आप लोग को LKG बच्चों जैसा पढ़ाना पड़ रहा है. एक मान लीजिए M40 ग्रेड कंक्रीट भाई, M40 ग्रेड कंक्रीट. M40 ग्रेड कंक्रीट में वेट ऑफ एग्रीगेट है, गिट्टी का वेट है, गिट्टी मतलब है फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट दोनों मिलके वेट है 1800 kg. SA एंड SC है स्टैंडर्ड वैल्यू, SW स्टैंडर्ड वैल्यू, ये तीनों तो स्टैंडर्ड वैल्यू. SA इज इक्वल 0.22 एंड SC इज आल्सो 0.22. टेम्परेचर ऑफ द एग्रीगेट है 30 डिग्री टेम्परेचर भाई. गिट्टी है जो भी साइट पे जो भी गिट्टी है धूप में आप थर्मामीटर से नाप लो 30 डिग्री. वेट ऑफ द सीमेंट है 400 kg. 1 क्यूबिक मीटर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट के लिए कंक्रीट के लिए
दीज आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड। आपने कंक्रीट मिक्स डिजाइन करोगे ना, M40 ग्रेड कंक्रीट, M30 का कंक्रीट मिक्स डिजाइन, सारे इंग्रेडिएंट्स है, पर क्यूबिक मीटर को एक्सप्रेस करोगे ना, ये मिक्स डिजाइन का इंग्रेडिएंट्स है। वाटर कितने डाल रहा है? 180 लीटर्स, फॉर एग्जांपल 180 लीटर्स। टेम्परेचर ऑफ पानी है मतलब 30, टेम्परेचर ऑफ द सीमेंट है 25 डिग्री। नाउ देखो मैं कैलकुलेट किया, देखो वेट ऑफ द एग्रीगेट प्लस टेम्परेचर ऑफ एग्रीगेट प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ द एग्रीगेट। नेक्स्ट ये तीनों क्या है? वेट, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट, ये तीनों सीमेंट का। ये तीनों क्या है? ये भी गलत है, SW होना चाहिए, ये SW, SS ये रॉन्ग है। ओके, SW हो जाएगा क्या? बाद में देखता हूँ। हाँ चल, नेक्स्ट ये सब्स्टिट्यूट किया, देखो WA के जगह पे 1800 kg, टेम्परेचर कितने हैं देखो 30, SA 0.22, वेट ऑफ द सीमेंट कितने? 400, टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट कितने? कंक्रीट सीमेंट कितने? 25 डिग्री। नेक्स्ट SC 0.22, नेक्स्ट वेट ऑफ द वाटर कितने? 180 kg, 180 लीटर्स मतलब है 180 kg। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ द वाटर कितने? 30 डिग्री। नेक्स्ट SS है स्टैंडर्ड वैल्यू 1.0 डिवाइडेड बाय ये 1800 इंटू 0.22 प्लस 400 इंटू दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट सटा, तो दैट मीन कितने आ रहा है भाई? फ्रेश कंक्रीट है, मिक्सर से कितने टेम्परेचर से गिर रहा है? द टेम्परेचर इज 30 डिग्री टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट फाइनली मिक्सर से ये गिरेगी। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो भाई, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। पूछो, वो जो स्लाइड में डाउट है तो पूछो। अक्षय भाई पूछो। नहीं है सर। हाँ, मतलब ये स्लाइड, यहाँ ये स्लाइड शो है, मतलब मैंने शेयर किया है, इस तरीका का टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट है, साइट पे कैलकुलेट करोगे। हाँ ओके, नाउ द रेट ऑफ एवापोरेशन निकालने के लिए मैं कल बता दिया ऑलरेडी, मैं 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूँ। इसको देखो, एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में आपको मैं देता हूँ। एयर टेम्परेचर, हवा का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, मैं हैदराबाद में कंक्रीटिंग कर रहा हूँ, हैदराबाद में एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है 42 डिग्री, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 60%। फॉर एग्जांपल कंक्रीट टेम्परेचर है 35 डिग्री। कंक्रीट टेम्परेचर कहां से आ गया? इसको देखो, इसको ऐसा कैलकुलेट करो, इसको पर्टिकुलरली ऐसा कैलकुलेट करो। कंक्रीट टेम्परेचर है 35 डिग्री, हवा का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, हवा का टेम्परेचर है ये है। कैलकुलेट रेट ऑफ एवापोरेशन, 1 2 3 4 ये वैल्यू चारों में देता हूं, आप कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करोगे मैं कल बता दिया, ये ग्राफ पेपर मैं दे देता हूं, आई विल गिव यू द ग्राफ पेपर। क्वेश्चन पेपर में कितने दिया ब्रदर? एयर टेम्परेचर कितने दिया? 42, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%, ये याद रखो, ये चारों वैल्यूज। कंक्रीट है 35, विंड वेलोसिटी 40। सो एक काम करो, 42 ना, दिस इज द एयर टेम्परेचर, 5 डिग्री 10 डिग्री 20 30 40, 42 मतलब है इधर, इधर से स्टार्ट करो, मेरा कर्सर फॉलो करो, इधर से स्टार्ट करो, ऐसा 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 कहाँ तक जाओगे? 60। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने दिया? हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%। सो आप है 60% तक जाइए, 60% करो मतलब यही होगा 40 50 60, दिस इज द कर्व। ओके ना, ये कर्व को टच कर दो, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% कर्व को टच करने के बाद ऐसा राइट साइड जाइए। कंक्रीट टेम्परेचर क्वेश्चन पेपर में कितने दिया? 35। ओके 35। सो आप है 35 को टच कर दो, टच करने के बाद नीचे आ जाओ। ये इस साइड जो भी कर्व्स दिया है ना, ये कर्व्स किसका? ये विंड वेलोसिटी का। देखो विंड वेलोसिटी, सो विंड वेलोसिटी कितने दिया? 40। 40 मतलब दिस इज द लाइन ना, ये लाइन है। सो इधर से आ जाइए, ये डॉटेड लाइन, इधर टच कर दो, टच करने के बाद लेफ्ट साइड आ जाइए। दिस इज द रेट ऑफ एवापोरेशन इन kg पर स्क्वायर मीटर पर आवर। ये मैक्सिमम लिमिट कितने है? 1.0। 1.0 से ज्यादा हो गया तो क्या करना? यू हैव टू टेक द रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स मतलब अभी तक मैंने जो रेमेडियल मेजर्स बता दिया ना, वो लेना पड़ेगा। अगर 1 से कम है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द हॉट वेदर कंक्रीट रेमेडियल मेजर्स। अगर 2.5 से ज्यादा आ गया रेट ऑफ एवापोरेशन, तब क्या करना है? मतलब डकाना ही है कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली ट्रोपालिन शेड्स करना, अदरवाइज नाइट टाइम कंक्रीटिंग करना। सो दिस इज द चार्ट फॉर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ एवापोरेशन। इसमें एयर टेम्परेचर इधर दिया जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व साइज इधर दिया जाएगा, कंक्रीट टेम्परेचर कर्व ऐसा दिया जाएगा, विंड वेलोसिटी कर्व है ये ऐसा दिया जाएगा, एंड रेट ऑफ एवापोरेशन है 0,
1.0, नेक्स्ट 2.0, 3.0, 4. इदिगो ये वैल्यूज है रेट ऑफ एवापोरेशन, ये वैल्यूज है एयर टेम्परेचर, ये वैल्यूज है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इदिगो ये वैल्यूज है तक. ये एक स्टूडेंट पूछता है सर मान लीजिए कंक्रीट टेम्परेचर है 32 डिग्री, तब क्या करोगे? इदिगो 30 का कर्व ऑलरेडी है, इदिगो 35 कर्व का है, 32 का मतलब क्या करोगे? एक पेंसिल लेके इधर है एक कर्व डेवलप कर ड्रा करो. मान लीजिए एयर टेम्परेचर है फॉर एग्जाम्पल है 38 kmph, तब एक काम करो ना, ये 40 का कर्व इज हियर एंड 35 का कर्व इज हियर. एक काम करो ना, पेंसिल से इधर एक लाइन मार्क करो ना, सिंपल. समझ में ना? आई विल स्टॉप एट दिस स्टेज. कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग नेक्स्ट क्लास.